پاکستان اور IMF کے درمیان حتمی معاہدہ آج بھی نہ ہو سکا۔ فریقین کا مذاکرات کل بھی جاری رکھنے پر اتفاق۔ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ، فریقین کے مابین مذاکرات شیڈیول کے مطابق آج ختم ہونے تھے۔ پاکستان اور IMF کے رابطوں کی تاریخ 60 سال پرانی۔ پاکستان کو 22ویں بار IMF سے قرضہ ملے گا۔ بیل آؤٹ پیکج ملنے کا یہ 13واں موقع ہوگا۔ پاکستان نے سب سے پہلے 1958 میں IMF سے قرض لیا تھا۔ آپ مطمئن ہو جائیں، مشکل وقت سے گزر جائیں گے، یہ ملک اس سے نکلے گا اور مضبوط ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ ایک عظیم ملک بنے گا۔ مجھے احساس ہے کہ لوگ مشکل میں ہیں، بجلی اور گیس مہنگی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعتراف، مشکل وقت گزر جائے گا، عوام پریشان نہ ہوں۔ راولپنڈی میں اسپتال کی تقریب سے خطاب، دیہات میں ایک بار پھر گائے، بھینسیں، بکریاں اور مرغیاں دینے کا اعلان۔ عمران خان عوام سے پرانے جھوٹ بول رہے ہیں، پرانے دلاسے دیے جا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا لوگوں کے پاس روٹی ہوگی تو ہی صحت ہوگی نا۔ عمران خان عوام کو سچ بتائیں۔ کوئی ایسا رمضان میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ جہاں ضروریات اشیاء صرف جو ہیں وہ ان کی قیمتیں نہ بڑھی ہوں۔ یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے اور بڑھتی ہیں۔ خریدا گھر نہیں چلتا، آپ گھر کے آپ کے پرس میں پیسے نہ ہوں، آپ گھر چلا کے دکھائیں، خزانے میں پیسے نہ ہوں تو یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پرس میں پیسے نہ ہوں تو گھر نہیں چلتا، خالی خزانے سے حکومت کیسے چلے گی؟ معاون خصوصی برائے نشریات فردوس عاشق آوان کی پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو۔ رہنما نون لیگ مصدق ملک نے کہا بتایا جائے مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ ٹیبل کے دونوں طرف تو IMF بیٹھا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ نے پوچھا کہاں گئے وہ گھر اور نوکریاں؟ کہاں گئے وہ گھر، کہاں گئی وہ نوکریاں؟ یا پھر یہ نیوز ہو گئی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی۔ مجھے ایک اچھی خبر بتا دیں فردوس بی بی، ایک اچھی خبر بتا دیں۔ اس 9 مہینے کے اندر ایک عام آدمی کی، ایک مڈل کلاس آدمی کی جو زندگی ہے وہ انہوں نے اتنی مشکل کر دی ہے۔ اب IMF سے جو یہ اپنی شرائط طے کرنے جا رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ شرائط بھی ایسی مانی جا رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک میں مزید ایک مہنگائی کا سیلاب آنا ہے۔ 9 ماہ میں عام آدمی کی زندگی مشکل کر دی گئی۔ IMF کی شرائط ماننے کے بعد مہنگائی مزید بڑھے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکر پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ سینئر سیاستدان شیخ وقاص نے کہا جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بنے گا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سمیت کوئی بھی پنجاب کی تقسیم نہیں چاہتا۔ جنوبی پنجاب صوبہ بننا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں پنجاب کی ڈویژن چاہتا، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، نہ کوئی حکومت چاہتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا، ہم بھی نہیں چاہتے۔ پاکستانی معیشت کو IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار IMF کے نمائندے اہم عہدوں پر لگا دیے گئے۔ سینیٹر اظہر ربانی حکومت پر برس پڑے، کہا حکومت نے بجٹ کی تمام معلومات IMF کے حوالے کر دی ہیں۔ IMF کی ڈکٹیشن پر شرح سود کو بڑھایا جائے گا۔ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں، ان کے مختلف معاملات میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور آخری ریکورس یہ ہوتا ہے کہ اس میں بینک اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں آپ اس کا۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا قانونی رائٹ تو موجود ہے بالکل، مگر اس سے پہلے سے انٹیمیٹ کریں، اکاؤنٹ فریز کرنے سے پہلے FBR کے چیئرمین سے اپروول لے لیں۔ کوئی بھی اکاؤنٹ منجمد کرنے سے پہلے آگاہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین FBR شبر زیدی نے پہلا حکم نامہ جاری کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ٹیکس کلیکشن بہتر بنانے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں، وہی کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ IMF کے بجائے پاکستان کی بات کی جائے گی۔ صرف آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آ رہی ہے۔ جناب مہنگائی ہوئی ہے، لیکن یہ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری جیسے ڈاکوؤں کی وجہ سے مہنگی ہے۔ ملک میں مہنگائی نواز شریف کی وجہ سے ہوئی۔ عمران خان ملک کو مسائل سے نجات دلائیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، ماضی میں فلاحی منصوبوں کی بروقت تکمیل پر توجہ نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا شکوہ۔ عید کے بعد عمران خان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
वजारत उज़्मा भी छोड़ सकते हैं। असेंबली तोड़कर मिड टर्म इलेक्शन कराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वस्सान ने नया ख्वाब देख लिया। मजीद कहा, नवाज शरीफ को 1-2 माह में रिलीफ मिल जाएगा और शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे। लाहौर के इलाके वाल्टन रोड पर मकान में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 बच्चे झुलस कर जाँ बहक, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सन है दाता दरबार की तहकीकात में पेशरफ्त, तहकीकात के लिए 5 रुकनी JIT तश्कील। सरबराह SP CTD सोहेब अशरफ होंगे। बमबार को दरबार लाने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्जिम की निशानदही पर गढ़ी शाहू से मजीद 3 मुश्तबा अफराद को सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में ले लिया। धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। लाड़काना को एड्स की नजर लग गई, मजीद 55 केसेस सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 337 तक पहुंच गई। इलाज न होने पर रत्तो डेरों में बच्चा जान की बाजी हार गया। कराची में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुआ। चंद माह बाद ही तजावुजात की भरमार लग गई। सदर और अतराफ में पत्थरों और ठेले वापस लगा दिए गए। अवाम परेशान, ट्रैफिक जैम के बायस सफर करने में मुश्किलात। इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक मैंने देखा नहीं है। मैंने टेलीविजन के टिकट्स देखे हैं, अभी तक वो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो कोर्ट की हिदायत होंगी उन पर अमल करेंगे। तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। तहरीरी फैसला आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, सिंध की तकसीम से मुताल्लिक गवर्नर सिंध के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। रमजान अल मुबारक में अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। कोयटा में कसाईयों की हड़ताल, मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंडोनेशिया में माहिर कारीगर की कारीगरी, लकड़ी पर कुरान पाक लिख दिया। नुस्खा 9 साल की अनथक मेहनत के बाद तैयार हुआ। वक्त में आती उन हवाओं को सलाम। माह रमजान में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। बारान रहमत ने नाजरीन के दिल जीत लिए। सहरी से लेकर अफ्तार तक माह मुक़द्दस की अहमियत, फजीलत और हुकूकुल इबाद पर गुफ्तगू। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को अफ्तार डिनर। कैनेडियन वजीर आजम शुरा में घुल मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं लियाबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर के पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब तातुल का शिकार हो गए हैं। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात आज भी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने एलामिया जारी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कई दिनों से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे बेल आउट पैकेज के हवाले से। अब ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं और वज़ारत ख़ज़ाना ने एलामिया जारी किया है कि मुज़ाकरात आज के दिन भी जारी रहेंगे। आखिरी दिन बताया जा रहा था, लेकिन अब एक दिन मजीद बढ़ा दिया गया है मुज़ाकरात के हवाले से। वज़ारत ख़ज़ाना ने यह एलामिया में बताया है कि अब मजीद मुज़ाकरात होंगे जो आज के दिन होंगे। अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं और फिर फरीक़ैन ने मुज़ाकरात आज भी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि बेल आउट पैकेज के हवाले से पाकिस्तान और मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। वजूहात क्या हैं ये हम जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक मुगल ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अशफाक, बताइएगा किन उमूर पर ये मुज़ाकरात मुअत्तल हुए हैं, तातुल का शिकार हुए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की हुकूमत के जो इक़्तिसादी टीम है उसके दरमियान और
IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ्ते पीर को शुरू हुए थे, जो बताया गया था कि 10 रोज तक जो है मुज़ाकरात जारी रहेंगे, तो आज शेड्यूल के मुताबिक ये मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल होने थे और आज मुआहदे का इम्कान था। ये बताया गया था वजारत खजाना के आला हुकाम की जानिब से, लेकिन जो पूरा दिन जो है वो मीडिया वजारत खजाना के बाहर रहा। वजारत खजाना के किसी भी एहलकार, किसी भी जो आला हुकाम ने ये बताने से ये गुरेज़ां रहे कि वो आज मुज़ाकरात मुकम्मल हो रहे हैं या नहीं मुकम्मल हो रहे। इस दौरान जो है IMF की टीम ने भी जो है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार रखी। ताहम जो ये एक स्टेटमेंट जिसमें कहा गया हुकूमत पाकिस्तान IMF के दरमियान मुज़ाकरात जो है जो वीकेंड पर भी जारी रहेंगे। तो इस तरह ज़राए का ये कहना है कि बाज़ मामलात पर जो है वो अभी ताहाल जो इत्तफाक राय नहीं हो सका, हालांकि कुछ मामलात पर फ़रीक़ैन के दरमियान जो मुज़ाकरात जो इत्तफाक हो चुका है। ताहम उसकी जो तफसीलात हैं या उसकी जुज़ियात हैं उस पे फ़रीक़ैन के दरमियान जो है मुज़ाकरात अभी कल भी होने हैं। जी बहुत शुक्रिया अशफाक मुग़ल आपका। पाकिस्तान ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी है। बिजली की कीमत 2 मराहिल में बढ़ाई जाएगी। पहला झटका जुलाई में ही दिया जाएगा। फाइनल बैठक में कर्ज हजम और दीगर मामलात तय हो चुके हैं, मगर मालियाती पैकेज की हतमी मंजूरी IMF जायजा मिशन की रिपोर्ट की रोशनी में देगा। आप मुतमईन हो जाएं, मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे, ये मुल्क इससे निकलेगा और मजबूत हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ये एक अजीम मुल्क बनेगा। एक तरफ हुकूमत के दिलासे, दूसरी तरफ महंगाई के वार जारी। पाकिस्तान और IMF की फाइनल बैठक में तमाम मामलात फाइनल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। कीमत 2 मराहिल में बढ़ाई जाएगी। पहला झटका जुलाई में ही दे दिया जाएगा। IMF ने GDP के मुकाबले में टैक्स की शरह 11.7% से बढ़ाकर 13.2% करने, जबकि बराह रास्त टैक्सेस का हजम 1904 अरब करने का कह दिया है। कर्ज हजम और दीगर मामलात तय कर लिए गए, मगर मालियाती पैकेज की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजा मिशन की रिपोर्ट की रोशनी में देगा। IMF पाकिस्तान को 13वीं बार बेल आउट पैकेज दे रहा है। मजमूई तौर पर यह 22वां कर्जा होगा जो पाकिस्तान IMF से हासिल करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मोहब्बत और नफरत की दास्तान देखिए इस रिपोर्ट में। कुर्रे अर्ज के 189 ममालिक बैनुल अक़वामी मालियाती फंड या IMF के रुकन हैं, जिनके मालियाती इस्तेहकाम के लिए बवक्ते जरूरत IMF कर्जा फराहम करता है। 1958 पहला साल था जब पाकिस्तान ने IMF से रुजू किया और 3 करोड़ अमरीकी डॉलर कर्जा हासिल किया। 1965 में 4 करोड़